Hello all, welcome back to your very own channel Classes with Neha. In today's class, let's learn about lines and angles. So let the magic begin. Now, what is a line segment? A line segment has two endpoints. It is a part of a line. Now, what is a line segment? Basically, it is nothing but a part of line which has two fixed endpoints. That is, it cannot be extended infinitely in both the directions. How will we denote this? This is a line segment. It is denoted by AB. Okay. And in representation of geometry, it is represented by AB and a line segment over the top. A and B पे जो हमने पॉइंट्स लगाए हैं, it indicates it cannot be extended infinitely in both the directions. उसकी फिक्स्ड लेंथ होगी, फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होंगे. ओके, फॉर एग्जांपल this side of my whiteboard is an example of a line segment. Why? Because it has two fixed endpoints, this and this. It cannot be extended beyond this. उसके ऊपर तक तो मेरा हाथ ही नहीं जाएगा और नीचे मुझे बहुत बेंड होना पड़ेगा, right? So this is the fixed length of this line segment. For that matter of fact, this duster, again this is a line segment. Why? Because it is a fixed endpoint. The sides of your mobile phone or maybe your notebook, they are all examples of line segment from real life world. Now coming on to line, it has no endpoints. No endpoints मतलब it can be extended infinitely in both the directions. For example, मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है. I have denoted it by again AB. Now these arrows indicate कि हम इसको इस तरफ भी extend कर सकते हैं और इस तरफ भी extend कर सकते हैं. And how will we represent it? AB and a line over the top. दोनों तरफ हमें यहाँ arrows mark करने हैं. Okay? While in case of line segment हमने सिर्फ dots mark किए थे. इस केस में हमें arrow mark करना है, which indicates that is it is extending infinitely in both the directions. Now, can you suggest me the example of a line from real life world? Yes, I can. See, the white line which you see on the road, those thick white lines, they run infinitely. You cannot fix it. So, that is the example of a line. Okay. Coming on to ray. Ray is a part of a line which has one starting point and goes endlessly in the other direction. अब ray क्या है? ये एक line का ही part है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट एक तरफ से उसको हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये फिक्स पॉइंट है ए और यहाँ पे जहाँ पे एरो है मैं उसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकती हूँ. ठीक है, अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी, ये लाइन सेगमेंट का पॉइंट और ये लाइन का पॉइंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट के लिए हमेशा हम पॉइंट यूज करते हैं और लाइन के लिए एरो, क्योंकि उसको हमें एक्सटेंड करना है. ठीक है, अब मैंने एक और रिप्रेजेंट करी है रे ए बी. यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे फिक्स्ड है और लेफ्ट हैंड साइड पे इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है. तो इसको भी हम नोटेशन इसकी कैसे करेंगे? ए बी. तो दोनों की रिप्रेजेंटेशन सेम है. यहाँ पे भी ए फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे भी ए है. यहाँ भी बी से वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है और इसमें भी वो बी से इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है. सो बेसिकली रे क्या है? इसका एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है और एक तरफ से उसको हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ दिस रे, इट कुड बी सन रे. सन रे के नाम से ही पता लगता है ना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रे. सन इज अ फिक्स पॉइंट एंड द रेज ऑफ लाइट दे आर एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली. ओके, सो एक तरफ से सन फिक्स्ड है लेकिन उसकी रेज सारी तरफ फैल रही है, इनफाइनाइट फैल रही है. Now starting with, what do we mean by an angle? Now angle is formed when a line segment or a ray share a common endpoint and this common endpoint is called a vertex. For example, herein I have taken a triangle ABC and there are three angles, angle A, angle B, angle C. अब एक हम एंगल A पहले ले लेते हैं. एंगल A के लिए मैंने आपको क्या बताया? कोई भी लाइन सेगमेंट या रे जब कॉमन पॉइंट शेयर करती हैं. अब आप देखिए एंगल A कैसे फॉर्म हुआ है? जब AB और AC, that is two line segments, they are sharing a common vertex A, तभी तो ये एंगल A फॉर्म हुआ. सिमिलरली एंगल C कैसे फॉर्म हुआ? जब AC और CB मिले C पे, that is again they are sharing a common vertex C. Similarly for angle B also. ठीक है, तो एंगल is formed only when line segments or rays share a common vertex. अब इन लाइन सेगमेंट्स को क्या कहते हैं? एंगल A के दो लाइन सेगमेंट्स कौन से थे? AB and AC. They are called the arms. Similarly for angle B, AB and BC are the arms. Okay. Similarly for angle C, AC and BC are the arms. Okay. So this was the explanation for angle. Now can you cite some examples from real world for angles? It could be a scissors. For example, a scissor is like this. These are the arms of the angle
and this is the common vertex. Also, the angles made by the minute hand and the hour hand of the clock, they are also examples of the angles. Now, angles are of various types. Let's discuss those. Now, we all are familiar with acute angles, right angles and obtuse angles. Acute angles are greater than 0 but less than 90 degrees. Example could be the beak of the bird. Again, you know that 90 degrees this is the beak of the bird. So, this is greater than 0 but at the same time less than 90. So, this is an example of a, yes, you are right, acute angle. Now, what is right angle? Right angle is an angle which has measure of exactly 90 degrees. For example, if I take this Rubik's cube, this angle is a 90 degree angle, okay, because this is L shape, okay. So, these are the two arms of the angle and this is the common vertex or the common endpoint of the angle, okay. Similarly, in the alphabet L, if I say, this is again is a right angle, okay. Now, coming on to the obtuse angle. What are obtuse angles? They are greater than 90 degrees but at the same time less than, yes, 180 degrees. For example, you can take the rooftops of a house. They are again obtuse angles, okay. Then the angle between the base and the screen of our open laptop. जब भी आप laptop खोलते हैं, it is slanting. The screen is always slanting and base is here. So that is also an obtuse angle. Okay, so these were the types of angles. I have not discussed them in detail because we have already studied them in previous classes. Okay, now let's discuss about the angles formations in both these figures. Okay, let's continue. Now I already told you that in this triangle ABC there are three angles, angle A, angle B, angle C. Now if I have to express angle B in expanded form, how will I do so? एंगल B को क्योंकि हमें एक्सटेंड करना है तो उसको आप पहले सेंटर में लिख लीजिए. अब B के अलावा और दोनों कौन से वर्टेक्स हैं, A और C, तो उनको पहले आप B के एक आगे और एक पीछे लिख लीजिए. तो दिस इज एंगल ABC और फिर उन A और C को आपको स्वैप करना है. दैट इज C की जगह A आ जाएगा और A की जगह C आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया. तो एंगल B को मैं ये भी कह सकती हूँ ABC या फिर CBA, CBA. ऑलराइट, लेट्स मेक इट फर्दर क्लियर. अगर मुझे एंगल C को नोटेशन करना है तो मैं कैसे करूंगी? या तो एंगल ACB विच इज ACB और अब हम A और B को स्वाइप कर देंगे विच इज BCA. सेंटर वाला जो आपका एंगल है इट हैज टू बी इन द सेंटर. जो भी आपको नेमिंग करनी है, जैसे हमें यहाँ नेमिंग C की करनी थी तो C हमेशा सेंटर में आएगा. और C के अलावा जो भी दो वर्टिसेस हैं वो हमें आगे और पीछे लिखने हैं. अगर हम पहले BA लिख रहे हैं तो दूसरे में AB और पहले AB लिख रहे हैं तो बाद में BA, बस उनको इंटरचेंज करना है. ठीक है, अब हमें अगर एंगल A को नेम करना है तो क्या करेंगे? A को पहले बीच में लिख लिया, ओके. अब A के अलावा दो कौन से वर्टिसेस हैं, B और C, तो पहले B और C लिख लिया, फिर इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, B की जगह C, C की जगह B. सो सिंपल. ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक एंगल हम ले सकते हैं बिकॉज बोथ आर डिनोटिंग एंगल B ओनली. इसमें भी BCA करो या ACB करो, इट इज डिनोटिंग ओनली वन एंगल विच इज एंगल C. अगेन इसमें भी इट इज डिनोटिंग वन एंगल विच इज एंगल A. तो इसमें कितने एंगल्स हो गए? 3. एंगल A, एंगल B, एंगल C. ठीक है, एक फिगर और ले लेते हैं. Herein I have taken two lines. Why? Because they can be extended infinitely in both the directions. और यहाँ पे आप देखिए एरो हेड्स हैं. ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करा है, 4 एंगल्स हैं. दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4. ठीक है, अब मैंने क्या नेम किया है, सपोज मेरा एंगल 1 जो है वो है AOB. AOB है. ठीक है, अब AOB को मैं कैसे डिफरेंट एक्सप्रेस कर सकती हूँ? BOA, O तो बीच में ही रहेगा. A की जगह B रख दिया, B की जगह O रख दिया, B की जगह A रख दिया. ठीक है, तो एक नोटेशन ये हो गई. वी आर डन विद दिस. अब आ जाते हैं सेकेंड एंगल पे. ये क्या है? BOD. BOD को मैं कैसे कर सकती हूँ? DOB. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड एंगल. थर्ड एंगल क्या है? COD. COD को मैं क्या कर सकती हूँ? O बीच में रहेगा, C की जगह D और D की जगह C. तो डॉट और कॉट दोनों बन गए. ठीक है, ये वाला भी हमारा हो गया. फोर्थ है COA. COA या फिर AOC, बात तो एक ही है ना. रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? ये एंगल 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ये दोनों पेयर्स. ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4. आप इसमें से कोई भी एंगल लिख के दैट वुड बी सेम, बट दोनों मत लिखना. आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर एक्सप्लेनेशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंगल्स. लेट्स डिस्कस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. Complementary angles
When the sum of the measures of two angles is 90 degree, then we call the angles as complementary angles. कभी भी अगर हमें दो एंगल्स गिवन है और उनका अगर हम सम टोटल करें and it comes out to be equal to 90 degree, then we say that the angles are complementary angles. For example, in this figure I have taken two angles. एक का मेजर है 30 डिग्री, एक का मेजर है 60 डिग्री. If I do 30 plus 60, it comes out to be 90. Then these are examples of complementary angles. Okay, taking one more example. Here one angle measures 40 degree and the other one measures 55 degree. Now if I do 40 plus 55, it comes out to be 95 degrees. Is 95 degree equals to 90 degree? No. Then these are not the example of complementary angles, while this is the example of complementary angles. One more thing, whenever two angles are complementary, one angle is said to be the complement of the other. That is, यहाँ पे जैसे 30 और 60 डिग्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 60 डिग्री और 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 30 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे तो ये कॉम्प्लीमेंट ही नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे. तो अगर एक एंगल x है तो कॉम्प्लीमेंट्री में दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस x डिग्री. अगर एक 30 है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस 30 60. एक 50 है तो दूसरा क्या होगा 40. इन जनरल टर्म्स अगर एक एंगल x है एंड दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, देन अदर हैज टू बी 90 माइनस x. ऑलराइट, नाउ वी विल डिस्कस सर्टेन केसेस. द फर्स्ट वन इज, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. क्या दो एक्यूट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं? अब एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो 0 से बड़े हो बट 90 से छोटे हो. 90 से छोटे मतलब से 50 और 40, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं या नहीं है? हैं. अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कंडीशन है. तो हाँ, ये हो सकते हैं. एक केस आप और ले सकते हैं, 30 डिग्री और 90 माइनस 30 क्या होता है 60 डिग्री. तो 30 प्लस 60 भी 90 है, तो ये भी दो एक्यूट एंगल्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टू एक्यूट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. दे कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. अब ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं? जो 90 से बड़े हो बट 180 से छोटे हो. जो सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो क्या होगा 91, क्योंकि 90 से बड़ा है. 180 से छोटे कोई भी हो सकते हैं, बट आई एम टेकिंग दिस केस. अब दूसरा भी सपोज 91 है, तो 91 प्लस 91 क्या हो जाता है 182 डिग्रीज. लेकिन हमें तो सम क्या चाहिए 90 डिग्री ना. तो किसी भी केस में ऑब्ट्यूज एंगल तो कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि लीस्ट ऑब्ट्यूज एंगल ही 91 है. उसके बाद तो मेजर बढ़ता ही जाएगा, कम तो होने के चांसेस ही नहीं है. सो टू ऑब्ट्यूज एंगल्स cannot be complementary to each other. Okay, now coming on to the third case, can two right angles be complement to each other. right angle क्या होता है 90 डिग्री. दो right angles मतलब दो 90 डिग्री. दो 90 डिग्री से क्या बन जाएगा 180 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या कंडीशन है, एक ही 90 चाहिए ना हमें. तो दो राइट एंगल्स तो किसी भी केस में कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकते. तो अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल. ऑलराइट, कमिंग ऑन टू दिस केस, नेम द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. अब एक ऐसा एंगल जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो वो कौन सा होगा? मैंने आपको बताया कि एक एंगल अगर x है तो दूसरा 90 माइनस x होगा. अब आप देखिए, एक अगर 45 है तो 90 माइनस 45 क्या होता है 45. तो दूसरा एंगल भी 45 है और 45 प्लस 45 क्या होता है 90 डिग्री. तो एक ऐसा एंगल जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है वो सिर्फ 45 डिग्री है. और हमें कैसे पता लगा, 90 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा. उसका 90 का बेसिकली आपको हाफ करना है. ठीक है, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट केसेस फॉर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस टाइप ऑफ एंगल्स. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल्स. Supplementary angles are the angles where the sum of the measures of two angles is 180 degree. मतलब दो एंगल्स का मेजर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए. ओके, लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल. 60 डिग्री है एक एंगल एंड द अदर वन इज 120 डिग्री. Now 60 plus 120 we all know is 180. Then these two angles are obviously supplementary angles. Coming on to the other example, one measure is 65, the other one measures 112. If we add them up, we get 177. Yeah, is 177 equals to 180? No. Then these are not supplementary angles because the measure of two angles is not equals to
180 degree. Alright. Also remember one thing, when two angles are supplementary, first angle is said to be the supplement of the other. For example, इस केस में 60 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा? 180 minus 60 which is 120 degree, and 120 का सप्लीमेंट क्या होगा? 180 minus 20 which is 60. In simple words, 60 का सप्लीमेंट is 120 and 120 का supplement is 60. If one angle is x, then its supplement would be 180 minus x. As simple as that. जैसे हमने complement में करा x और 90 minus x. Similarly, in supplementary angles also. Now, coming on to some questions. Can two acute angles be supplement to each other? अब acute angles क्या होते हैं? जो 0 से बड़े हों but 90 से छोटे हों. 90 से छोटे क्या होंगे? सबसे जो मैक्सिमम केस है वो 89 हो सकता है. 89 plus 89 is 178. ठीक है. Is the measure coming equal to 180 degree? No. So two acute angles cannot be supplement to each other. Why? Because their measure is not coming equal to 180 degree. Now, can two obtuse angles be supplement to each other? Obtuse angles क्या होते हैं? 91 डिग्री, बिकॉज 90 से बड़े और 180 से छोटे, तो हम सबसे छोटे वाला केस लेते हैं 91. अगर मैं 91 भी लूँ दोनों एंगल्स, देन ऑल्सो इट इज कमिंग आउट टू बी 182 डिग्री. बट हमें तो 180 डिग्री चाहिए ना दोनों एंगल्स का मेजर. अगेन देन द टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नेवर बी सप्लीमेंट टू ईच अदर. इसमें आप और केसेस भी ले सकते हैं, बट उसका आंसर हमेशा 180 से और ज्यादा ही आएगा. ओके, आई हैव टेकन द लीस्ट ऑब्ट्यूज एंगल इन दिस केस. Coming on to the third question, can two right angles be supplement to each other? Two right angles क्या होंगे? दो 90 डिग्री. 90 plus 90 क्या होता है? 180 डिग्री. So obviously two right angles are supplement to each other. Obviously this statement is very much true. All right. Coming on to the last case, name the angle which is equal to its supplement. अब हमें ऐसा एक एंगल बताना है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो. वो क्या होगा? टोटल हमें एंगल सम क्या चाहिए? 180 डिग्री. अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ, इट इज 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एक ऐसा एंगल जो उसके सप्लीमेंट के इक्वल है, दैट इज 90 डिग्री, बिकॉज द अदर वुड बी 180 माइनस 90 विच इज ऑल्सो 90. इसको आप x से भी सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल आई कैन से x प्लस एक्स इज 180. वाई हैव टेकन x प्लस एक्स? क्योंकि हमें एक ऐसा एंगल बताना है जो इक्वल हो उसके सप्लीमेंट के. तो अगर एक x है तो ऑब्वियसली दूसरा भी x होगा. ठीक है. और 180 इसलिए क्योंकि हमें सप्लीमेंट चाहिए. तो x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x. 2x इज 180 डिग्री. 2x अगर 180 डिग्री है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री. तो अब इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं. ठीक है. सो द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट इज नथिंग एल्स बट 90 डिग्री. ओके. सो दिस वाज ऑल फॉर सप्लीमेंट्री क्लास. I hope I have made myself clear to all of you. Thanks for watching. Stay tuned for more videos. Do like, share and subscribe to my channel. Till then, keep smiling, be happy and take care.